Hello aspirants. Today in class 8 of number system, I am going to talk about number of digits occur. A very important topic. See, every year at least one question is asked from this topic in CSAT paper. Very easy and very important. So शुरू करते हैं. See, पहले we will understand the concept, then we will do few questions and then we will do the previous year questions asked in UPSC. ठीक है. See, first, as discussed in my earlier classes, I have explained the number formation. Like if the number is in XYZ form, that is like a 3-digit number, like say 1, 2, 3. 123 is a 3-digit number. So here 3 is unit digit place, and 2 is in tens digit place, right? Tens digit place, and 1 is in hundreds place, right? So it is a 3-digit number. So for discussing the number of times number occur, if it is a 3-digit number, 4-digit number, we need to keep in mind how many times the number occurs in unit digit place, how many times the number occurs in tens digit place, and how many times the number occurs in 100-digit place. And if we add all these things, we will get number of times a digit can occur. ठीक है, it is as simple. We will do questions, you will get more clarity. And now is like to count for every number, like how many times it occurs in digit place, tens place, etc. It is little bit difficult. So here we have a trick to do the questions fast. Like जल्दी टाइम सेव करे, वो कैसे करना है, उसके लिए we need to remember 2 facts. ज्यादा नहीं है आपको, like मैं समझाऊंगा भी, and then it get used to, you will remember like by revising 3 to 4 times. See, so पहले लिखते हैं नोट करके साइड में लिखो a important formula. See, if we take number from 1 to 100, so in 1 to 100, 1 occurs 21 times, and numbers like 2 to 9 occurs 20 times. Like here 2 to 9 means 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ये सारे नंबर्स है. All these numbers occur 20 times and 1 occurs 21 times. जैसे कैसे देखते हैं, देखो 1 occurs like unit place में, 1 in unit place में it's like 1, 11, 21. Here 1 is in unit place, right? 31, 41, 51, 61, 71, 81 and 91. So ये कितने हो गया? 10 हो गया. 10 times 1 occurs in unit place. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 times, and 1 in tens place. कैसे? अब देखो 1 in tens place is what? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. अगेन ये कितने बार हो गया, पूरा काउंट करो. इट्स 10 times. सो टेंस प्लेस में 1 है,
ठीक है, अब देखो 1 in hundreds place, because number is 1 to 100, right? So 1 in hundreds place is 100, so 1 time. So पूरा 10 plus 10 plus 1 is equal to 21 times. Here 21 times. So you need to remember this as a fact. See, for any number, no need to remember. Once I discuss the concept, you will understand. So note this down. Then is like, say for example number 3. It's like number 2, 3 say 20 times, right? Let's check how 3 occurs 20 times. Like 3 in unit place. Unit place में 3 comes in like 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 and 93. In numbers 1 to 100, right? 93. See, this is what? 10 times. And again 3 in tens place. 3 in tens place is what? 30 to 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Again 10 times. So, and since 1 to 100 का number में there is no 1, so it is 10 plus 10 is equal to 20 times. So here 20 times. All the numbers occur in 20 times and 21 times. ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कैसे क्वेश्चंस में यूज कर सकता है. सी, नोट डाउन द क्वेश्चन. सी हियर वॉट एवर आई एम टीचिंग, नोट इट डाउन. सी, दिस वन इज ए formula we need to remember, so put it in box with star mark so that you can revise it regularly. Then चलो डिस्कस करते हैं with respect to questions. Question is 1 to 300 how many times digit 3 occur. क्वेश्चन है. अब इसका सॉल्यूशन कर देंगे. सॉल्यूशन इज लाइक, से 1 to 100. 1 to 100 में 3 कितने बार आता है? वी हैव डिस्कस्ड हियर. सो 3 occurs in 20 times, राइट? सो सीधा लिख देंगे 20 times. एंड 101 to 200 में 3 कितने बार आता है? See, same again here 101 to 200 में 3 कितने बार आता है? Again 20 times. See, check. If you want, you can check like ones place में, tens place में and hundreds place में. See, one place में 3 is like 103, 113, 123, 133, 143, 153, 163, 173, 183 and 193. So ये हो गया 10. Then आता है tens place में. 10 place में is like 130, 131, वही है ना 101 to 200 में 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139. ये अगेन हो गया 10. 10 plus 10 is equal to 20. Then 201 to 300 में 3 कितने बार आता है? Here आता है 21 times, not 20 times. क्यों? Because ये 300 भी है, इसका 3 भी ऐड होता है. So let's check. See, 201 में 3 कितने बार आता है? 201 से it is like 203, 213 units place, 223, 233, 243, 253, 263, 273, 283, 293. ठीक है, ये 10 बार हो गया. देन आता है टेंस प्लेस में 230, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239. सो ये 10 बार हो गया. देन आता है 300. 300 में भी आता है. सो 201 to 300. So we must take 300 also. So 300 is 21st time. तो पूरा में कितने बार आता है? It's 61 times. 3 आता है. So the answer is 61 times. ठीक है. So जब भी whenever we are seeing a number, if number is present, अगर मान ले वही 1 दिया होता ना इधर instead of 3, if it is 1, then इधर 21 हो जाता. ठीक है. बाकी सब में 20 हो जाता, इधर 20 होता, 61 टाइम्स हो जाता. सो यू नीड टू सी अगेन वन मोर थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर. 233 is happening. You must not consider it as one time only. It's 2 times happening, right? यूनिट डिजिट में और 2 बार आ रहा है ना इधर देखो. 2 times it's happening. 2 times. So how many times? We need to count both. So it is 21 times आएगा ऐसा. So again एक और क्वेश्चन करते हैं. You will get a clarity. Question is 1 to 500 में how many times 7 occurs? 7 कितने बार आता है? अब देखो how do you solve? 1 to 100 में 7 कितने बार आता है? अगेन सेम फॉर्मूला 20 टाइम्स, क्योंकि 2 to 9 जो भी है 1 to 100 में आता है. देन 1012 200 में अगेन 7 कितने बार आता है? 20 टाइम्स. अगेन 2012 300, हियर अगेन 20 टाइम्स. 3012 400 में कितने बार? 20 टाइम्स, क्योंकि 7 का बात हो रहा है. एंड 4012 500 में कितने बार आता है? अगेन 20 टाइम्स. सो द आंसर इज 100 टाइम्स डिजिट 7 occurs. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 to 300 how many times 2 occur? अब देखो इधर थोड़ा कॉन्सेप्ट और चेंज हो जाएगा. यू विल गेट 1 to 100 में 2 how many times occur? We discussed already, it is 20 times. And here 1012 200 में 2 how many times occurs? See here carefully, here 200 तक है. So 1012 200 तक it is 21 times because 2 is there. 200 में भी 2 आएगा, so एक और ऐड हो जाएगा 21 times. And 201 to 300 में कितने बार आएगा? बताओ. 201 to क्या 20 times? No, it is 20 times तो आएगा because 200 to 1 to 300 है. 20 times तो आएगा प्लस 99 टाइम्स. अब 99 टाइम्स कैसे? देखो 20 टाइम्स इज वंस प्लेस में प्लस टेंस प्लेस में कैसे आएगा? सो दैट इज लाइक वंस प्लेस में 2 इज लाइक 202, 212, 222 एक्सेट्रा सो ऑन टू 292 तक. अगेन आता है बाई टेंस प्लेस में इट इज 220, 221, 222 सो ऑन टू 229 तक. ये हो गया 20 टाइम्स. बट दिस 99 इज लाइक बाकी नंबर भी तो है. 201, 202, 203 इधर भी तो आ रहा है. सो ऑन 204, 205, 206, 207 सो ऑन टू 299 तक आ रहा है. सो इधर 201 to 299 तक कितने नंबर होगा? 99. काउंट 201 to 299. तो इतने बार आएगा. व्हेन यू ऐड एवरीथिंग
it comes out to be 99 plus 100 and 160 times. So you are getting, so what you will get is like 20 times आएगा, 21 times आएगा, then 99 times or 200 times based on it. You must be careful like okay which digit like 200 भी आएगा, first unit digit में कितने आएगा. See this is hundreds place, this is tens place, this is units place. So you need to find out कि हर place में कितने बार आएगा. Getting easy. Then we will do one more question और clarity मिल जाएगी आपको. You will get more clarity. So that is why you must do lots and lots of questions. As you do n number of questions, so 100 to 400 में how many times 3 occur. ठीक है, अब देखो 1 to 100 3 कितने बार आता है, फॉर्मूला क्या है 20 टाइम्स जो हमने याद किया. देन 101 to 200. सी हियर 101 से 200 तक लेना है बिकॉज ऑलरेडी 1 हमने इधर लिया है. 101 अगेन 20 टाइम्स बाई 3 कैसे आएगा 103 113 एक्सेट्रा. देन 130 131 एक्सेट्रा. देन अगेन 201 to 300 में 3 कितने बार आएगा, देखो 3 इधर 3 है 21 टाइम्स बिकॉज 300 का 3 भी आएगा. देन आता है 301 to 400 में कितने बार आएगा, 20 प्लस 99 कैसे किसका 301 302 303 सो ऑन 399 तक का ये का. और ये 20 इट इज लाइक 303 313 323 so on 393. then again 330 331 332 333 so on 339. ये 20 इसका हो गया एंड ये 99 इनका हो गया. पूरा अब ऐड करो यू विल गेट 99 प्लस 100 एंड 4 20s आर 180 टाइम्स 3 आएगा. सो you are getting, you got the concept how you need to count and how you can easily do when you remember just 2 things कि भाई 1 to 100 में ये 2 चीजें याद होने से आपको क्वेश्चन टाइमली हो जाएगा विथ क्लैरिटी भी. ठीक है. एंड वन मोर थिंग यू मस्ट रिमेंबर इज 99 टाइम्स. जब भी 301 से 400 का जब आएगा नंबर 399 टाइम्स यूनिट प्लेस में, क्योंकि 300 इधर काउंट करते हैं 301 टू 399. अब वही 300 से 399 तक लिया तो 100 टाइम्स आएगा. गेटिंग, क्योंकि 30 है तो 1 से 99 तक तो 99 है एंड इधर 0 है तो वो 100 वाला आ जाएगा. सो अभी क्या करेंगे, अभी वी विल डू क्वेश्चंस आस्क्ड इन यूपीएससी. सो you got the concept how you need to count. Now we will do the questions so you get more clarity on how to solve these questions. So चलो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन यूपीएससी 2020 में सीसैट का एग्जाम में पूछा. सो द नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 5 विल बी रिटर्न while listing numbers from 1 to 1000. See same the question like we did. So 1 to 1000 में डिजिट 5 कितने बार लिखेंगे, 5 कितने बार लिखेंगे, हाउ मेनी टाइम्स. सो फॉर दैट वी विल डू 1 to 100 में कितने बार लिखेंगे डिजिट 5, 1 to 100 में कितने 20 टाइम्स बिकॉज 2 से लेके 9 तक कितनी बार आता है 20 बार. देन 1012 to 200 is again 20 times 5 आएगा. 105 115 और 150 151 लेके
देन 2012 300 कितने बार आएगा? अगेन 20 टाइम्स. देन 3012 400 अगेन 20 टाइम्स. देन 4012 500. अब इधर देखो, इधर कितने बार आएगा? 21 टाइम्स. क्यों? बिकॉज 500 में भी आएगा. देन अगेन 5012 600 में कितने बार आएगा? सी हियर 20 प्लस 99 बिकॉज 501 502 500 100 प्लेस में नंबर्स आएंगे 99 एंड टेंस प्लेस में आएंगे 501 505 515 एक्सेट्रा. यूनिट प्लेस में 10 आएंगे. सो अगेन अब 600 टू 700 में अगेन 20 टाइम्स. देन 700 टू 800 is again 20 times. 800 to 9 सॉरी इधर 601 701 801 क्योंकि 800 इधर लिखिए. 900 to 20 times and 901 to 1000 is again 20 times. इन सब का ऐड करना है. ऐड करने से देखो 99 प्लस 100 हो गया एंड 120 140 ठीक है 160 180 200 plus 5 300 times. If you add all these things you will get 300. So answer is 300. So easy. You got the concept. इतना easy है. Once you know you can simply see there is another way. Like this is like unit place में कितने आएंगे and tens place में कितने आएंगे 100 place में कितने आएंगे. Like it is unit place का. So unit place you count is like 5. Then you will get 15 25 35 45 so on etc तक इतना. So इतना काउंट करने में आपको टाइम लगेगा. So rather doing this would be easy. So follow this approach. Then आता है next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम यूपीएससी का 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. सी एवरी ईयर वन क्वेश्चन इज आस्क्ड. सो क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स देर आर हाउ मेनी नंबर्स आर देर बिटवीन 99 to 1000 सच दैट डिजिट 8 ऑक्युपाइज यूनिट प्लेस. अब देखो पूछ रहा है 99 to 1000 तक डिजिट 8 ऑक्युपाइज यूनिट प्लेस. सो ये सिर्फ यूनिट प्लेस का पूछ रहा है. सो डिजिट 8 ऑक्युपाइज यूनिट प्लेस कितने बार होगा? सी देखो यूनिट प्लेस इज लाइक नंबर्स लाइक 99 से लेके टू 1000 तक. अब देखो इधर आएगा अगेन विल टेक 100 to 200 के बीच में कितने आएंगे नंबर्स ऑक्युपाइंग. लाइक दिस इज 3 डिजिट नंबर राइट. 100 to 200 में कितने आएंगे? सी इट इज 108 118 बिकॉज 8 इज यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस इज दिस वन 128. सो यूनिट प्लेस. सो इधर आएगा 138 148 158 168 and 178 188 because unit place में 8 आ रहा है 198. so these 10 numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 times आएगा. अब देखो we don't take 180 181 because इधर 10th place में है. so ये नहीं आएगा. so only 10 times occurs. then 2012 300 में हाउ मेनी टाइम्स? अगेन 10 टाइम्स. कैसे? अगेन 208 218 228 238 248 258 एक्सेट्रा उसी में आएगा. बिल्कुल यूनिट प्लेस का ही है सब. 268 278 में भी यूनिट प्लेस. देन अगेन 3012 400 में अगेन 10 टाइम्स. दैट इज यूनिट प्लेस में 308 318 एक्सेट्रा. अगेन 4012 500 में
10 times. Again 5012 600 में again 10 times. 6012 700 में again 10 times. So in exam you no need to write down like this. You can just think and get to the answer. Then 7012 800 में ये कितने बार आएगा? Again 10 times. Because in 800 number 8 is not in units place, it's in 100 place. Then again 8012 900 again 10 times. Because सिर्फ 808 818 वगैरह में ही आएगा. Because here question is in such that digit unit 8 occupies unit place. सिर्फ unit place में ही पूछा है. Again 10 times आएगा. 9012 1000 में भी 10 times आएगा. So इधर कितने पूरा काउंट किया तो 9 times आएगा, तो कंप्लीट 90 times आएगा. See here answer is C. अगर इधर यूनिट प्लेस की जगह 10 प्लेस होता या 100 प्लेस होता तो आंसर कितना होगा? दिस वन ऑल्सो यू सॉल्व. सी 10 प्लेस 100 प्लेस, या होता कि भाई पूरा 8 डिजिट 8 कितने बार आता, तो देन आंसर वुड बी डिफरेंट. सो यू नीड टू सी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एंड आंसर अकॉर्डिंगली. ठीक है, यू आर गेटिंग द आंसर फॉर दिस इज 90. यू कैन चेक कि भाई 10 प्लेस में कितने बार आता है, 100 प्लेस में कितने बार आता है, एंड ओवरऑल 8 कितने बार आता है बिटवीन 99 टू 800. दैट कैन बी क्वेश्चन इन नेक्स्ट अटेम्प्ट, राइट? सो you once you know the concept, question solving is very easy. So first thing is you must know the concept and then you must read question properly. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2016 का यूपीएससी का क्वेश्चन है. अगेन सिंपल क्वेश्चन. सो क्वेश्चन पढ़ते हैं. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 टू एंड 300 विच either begin or end with 2. either मतलब both, either begin with 2 and end with 2. begin with 2 number or end with 2. between 100 to 300 में ये कितने नंबर होंगे? इधर बिगिन विथ 2 और एंड विथ 2. ठीक है, ये दोनों का देखना है. अब देखो बिगिन विथ 2 और एंड विथ 2. सो फर्स्ट लेट्स सी बिगिन विथ 2 कितने नंबर होते हैं 100 टू 200 में. सी बिगिन विथ 2 कितने नंबर पॉसिबल है? ओनली 1 पॉसिबल, दैट इज व्हाट 200. सो बिगिन विथ 2 देख रहे हैं हम लोग. बिगिन विथ 2 कितने? इधर बिगिन और एंड विथ 2 देख रहा है. सो बिगिन विथ 2 में ओनली 1 नंबर इज पॉसिबल, दैट इज 200. देन 201 टू 300 में बिगिन विथ 1 कितने नंबर पॉसिबल है? सी 201 टू 300 इट इज 99 टाइम्स नंबर आएगा. इट्स लाइक 201 202 सो ऑन टू 299 तक 99 नंबर पॉसिबल है. सो दैट्स इट, राइट? 300 तक हो गया. बिगिन विथ कितने आएगा? फुल 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स आएगा. देन एंड विथ 2 देखते हैं. एंड विथ 2 फ्रॉम 100 टू 200 में कितने आएंगे? इट्स लाइक 102 112 122 132 142 152 162 172 182 and 192. so here it is 10 times 10 numbers है where between 200 100 to a end with. then 200 to 300 में end with 2 कितने? that is like 202
212 एक्सेट्रा सो ऑन टू 292। ठीक है, अब कितने, अब देखो ये नंबर्स नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी दीज नंबर्स आर टेकन हियर। जो 99 नंबर्स है हियर, सी 202 इज टेकन, 212 इज टेकन, 222 इज टेकन, सो वी डोंट काउंट दिस बिकॉज दीज नंबर्स ऑलरेडी काउंटेड। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स क्या है भाई, या तो 102 112 ये नंबर होंगे, 202 ये सब नंबर होंगे। सो द आंसर इज 100 प्लस 10, 100 ये एंड 10 ये वाला, सो 110 इज द आंसर। So you are getting why we didn't take these, because these numbers are already taken care of here. ठीक है, so the answer is 110. Either begin with or end with 2. Numbers कितने हैं, 110 numbers है। So you are getting the point. So next question देखते हैं। Next question is asked in UPSC 2021. See, integers are listed between how many times? Integer is the sum of integer in how many integers is the sum of digits is 10. See, numbers are 700 to 100,000 दिया है, listed लिस्ट किया। how many integers, कितने ऐसा integers है where sum of digits is like say 7 10, here sum of digits is what, 7 plus 1 plus 0, so ये आएगा 8। so इधर क्वेश्चन क्या है, sum of digits is 10, 10 कितने होगा, एग्जाम्पल 721 में होगा 7 plus 2 plus 1 is equal to sum of digits ये सब है is equal to 10। ऐसा कितने डिजिट्स है वेयर सम ऑफ डिजिट्स जो होगा वो 10 होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है सम ऑफ डिजिट्स 10 कितने नंबर्स होंगे उधर। अब देखो, अब 700 टू 800 पहले देखते हैं कि भाई 700s में कितने नंबर होगा। सी 700s में ऐसा नंबर आएगा, सो वेयर हियर 2 डिजिट्स मस्ट बी सम इज 3 होना चाहिए बिकॉज 7 ऑलरेडी आ रहा है, सो सम होना चाहिए 3 इन 2 डिजिट्स का। ठीक है, अब 3 का ऐसा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है भाई 703, सम इज 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, देन आता है 730। ठीक है, देन आता है सम 3 में 721 बिकॉज सम देखो 712 एंड 721 सम है। ऐसा और कोई है, कोई और नहीं है, या तो 0 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। सो इट हियर विथ 700 टू 799 में आएगा 4 नंबर्स है 1 2 3 4। देन विथ 8, तो 8 में क्या सम 3 होना चाहिए, तो 802 बिकॉज 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, देन 820। ठीक है, सम इज 10, देन आता है 811, 811, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 एंड अगेन 1 इंटरचेंज किया तो 811 ही आएगा सेम नंबर। सो हियर आता है 3, देन आता है 9 के साथ, हियर 9 के साथ आएगा तो 901 होना चाहिए और 910 बिकॉज 9 प्लस 1 10, सो इधर आएगा 2। अदर देन दिस 9 2 तो वो 11 हो जाएगा सम, सो 4 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इज द आंसर। ठीक है, सो सम इजी क्वेश्चन लाइक सम ऑफ इंटीजर्स डिजिट है 10 होना चाहिए। सो वंस यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन यूज इट, लाइक कितने आएगा 7 1 भाई डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स क्या है वो भी पता होना चाहिए, उसके लिए डिजिट्स क्या है वो पता होना चाहिए। वी हैव डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर क्लासेस ऑल्सो डिजिट्स क्या है। इफ देर इज ए नंबर 700, this is 1 digit, this is 1 digit, this is another digit, this is digit in units place, this is digit in tens place, this is a digit in hundreds place। ठीक है, that's how you need to proceed to do these kind of questions। So you got clear, see note down all these questions and
the way I am explaining, so that you can revise these concepts before exams multiple times, so that you have an idea कि भाई questions करना कैसे है. So concepts भी revision होगा, formulas भी दिमाग में बैठ जाएंगे. So the next question is asked in UPSC 2018 में पूछा है, CSAT में. So question let's read the question. While writing all the numbers between 700 to 1000, how many numbers occur in which digit at hundreds place is greater than the digit at 10 place? देखो x y z नंबर है 700 to 8000 के बीच में, where hundreds place is greater than digits place, where x greater than y होना चाहिए and digit at tens place is greater than digits at unit place and y greater than z होना चाहिए, because ये unit place है, ये tens place है, ये hundreds place है. तो x greater than y होना चाहिए, y greater than z होना चाहिए. See numbers like say 700 से लेके 700 to 1000. So let's check from with 700 to 800 तक, to 800 तक with 7 as a first digit. So अब देखो 700 है, ऐसा पॉसिबल है because y is equal to z, इधर 0 0 सेम है ना, so this number can't be there. So then आता है 701, here z is greater than y. 702 सेम, तो 70 जितने भी आएगा वो सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हियर या तो दोनों डिजिट्स इक्वल है या तो यूनिट डिजिट इज ग्रेटर देन टेंस डिजिट. बट द क्वेश्चन इज टेंस प्लेस हैज टू बी ग्रेटर देन यूनिट्स प्लेस एंड ऐसा. तो देन आता है 710. यस 710 इज ए नंबर बिकॉज हियर देखो हंड्रेड्स प्लेस इज ग्रेटर देन टेंस प्लेस, 7 इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0. सो एंड ये नंबर पॉसिबल है. देन 711 ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज बोथ डिजिट्स का नंबर इक्वल है. सो हियर 1 पॉसिबिलिटी. देन आता है 720 में 720 पॉसिबल है बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड 721 अगेन पॉसिबल, 7 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1. It is satisfying the condition. Again 722 it's not satisfying because 2 and 2 are equal. So here 2 possibilities आता है. Then 730 का yes case possible. 731 yes, 732 yes because 7 is greater than 3 and 3 is greater than 2. Here 3 possible. Again देखो 733 not possible because दोनों equal है. सेम विथ 740 में 740, 741, 742, 743, 744 पॉसिबल नहीं है. सो इधर 4 आएगा. देन 750 में आएगा 5, से को 751, 752, 753, 754, 755 है पॉसिबल नहीं है. सो 750 तो 1 2 3 4 5. अगेन 760 में 6 पॉसिबल आएगा. कैसे 761, 762, 763, 764, 765 तक इधर 6 आएगा. देन आता है 770 में पॉसिबल है नहीं है क्योंकि ये इक्वल है. 770 ये दोनों इक्वल है बट एज पर कंडीशन इक्वल नहीं होना चाहिए. एंड अगेन 780 में भी पॉसिबल नहीं है. सो 700 में इतने पॉसिबल केसेस है. ठीक है. देन चेक करते 800 का. 800 में भी बिकॉज नंबर इज 700 to 1000 राइट. सो वी नीड टू चेक फॉर 800 ऑल्सो. 800 में पॉसिबल नहीं है, 801 में पॉसिबल नहीं है बिकॉज इक्वल है इधर टेंस प्लेस बिगर देन यूनिट्स प्लेस. सो 810 एस पॉसिबल बिकॉज 8 इज बिगर देन 1 एंड 1 इज बिगर देन 0.
सो एक पॉसिबल है, बिकॉज 811 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बोथ नंबर्स आर इक्वल. देन 820 में 821 2 पॉसिबल, बिकॉज ये देखो 8 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1. सेम विथ all the numbers till 830 में 831 832 833 है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बोथ इक्वल है, सो 3 आएगा. 840 में 4 आएगा, बिकॉज 841 842 843 तक. देन आता है 850 में 851 852 853 854. so here 5 possibilities. then 860s में 6 possibilities. 870s में 870 871 872, so 7 possibilities आए. 873 874 ऐसा करके. then 880s में possible है 9, 0 possibilities because 8 and 8 are equal. so here आएगा 800s में ये सारे नंबर्स प्लस किया तो ये. देन अगेन 900s में 900s में देखो 900 का पॉसिबिलिटी 901 भी पॉसिबिलिटी, बिकॉज इधर सेम इक्वल है, इधर वो है. देन आता है 910 911 पॉसिबल नहीं है, सेम इधर 1. अगेन 920 921 2 आएगा. सो ऑन. हमें सीक्वेंस एक पता चला कि +7 970 तक आएगा, 971 तक आएगा, जो कितने आएगा ये 7 है. बट इधर 980s में भी आएगा, 980 981, क्योंकि 9 बिगर देन 8 एंड 8 बिगर देन 0, सेम 9 बिगर देन 8, सो इधर आएगा 8. सो इन सबको ऐड करना है. सो पूरा ऐड किया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6. हियर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7. हियर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8. ये सब ऐड किया तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 85. सो सी दिस क्वेश्चन इज ए लेंथी क्वेश्चन, easy but lengthy question. In UPSC it might take time. So what would you do? You would do this question in the last, जब time है. Despite you understand the concept, since it's going to take time, you would do it in the end, जब time बचेगा. So it is very important. See, you must do all the easy questions. See, बहुत लोग क्या करते हैं कि सिर्फ 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आता है और 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं, वो गलत है. बिकॉज वो अटेम्प्ट करने के चक्कर में इजी क्वेश्चन छूट जाता है. सो द आइडियल वे इज डू फ्रॉम 50 to 60 क्वेश्चंस. जो सारे इजी क्वेश्चंस है वो सब सॉल्व करना चाहिए, तब यू विल गेट 100+ स्कोर. सो मुश्किल क्वेश्चन है तो मार्क इट डाउन, राउंड इट, सो दैट चलो ठीक है आई विल डू इट इन द एंड. इजी क्वेश्चन लगा, डू इट देयर इटसेल्फ. ठीक है, 2018 का क्वेश्चन. देन आता है 2019 का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है. 2020 का क्वेश्चन पढ़ते हैं सेम यूपीएससी CSAT में. सी एवरी ईयर 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड, सो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस concept based questions. How many integers are there where between 1 to 100 which have 4 as a digit, 4 as a digit but not divisible by 4. अब देखो how many integers are there between 1 to 100 which 4 as a digit. अब देखो 4 as a digit क्या होता है, एक होता है 4 in units place 1 to 100 का, देन आता है 4 in tens place. अब भाई 4 in units place क्या है, 4 1 to 100 में 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94. ठीक है, दिस इज 4 in units place. देन आता है 4 in tens place. 4 in tens place में क्या है, 40 41 42 43
44, see here 44 is occurring 4 टाइम बिकॉज ये तो मैं एक ही नंबर लूंगा, 44 इधर नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी उधर आ रहा है. एंड अगेन 45, 46, 47, 48, 49, बस यही है बिकॉज 2 डिजिट नंबर से सारे या तो यूनिट प्लेस में 4 आएगा या तो ये. अब क्वेश्चन क्या है, 4 जैसे डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाई 4. नॉट डिविजिबल बाई 4 मतलब when divided by 4 remainder shouldn't be 0. So 4 is divisible by 4 because 4 divided by 4 is remainder 0. So ये नहीं है. अब not divisible by, देखो 14 is not divisible by 4 because 14 divided by 4 you will get 4 3s are 12, remainder you get is 2. Again 24 is divisible by 4, so this is not the number 24 because 24 4 6 are 24, so remainder is 0. Again 34 is not divisible because 34 से remainder करेगा तो वो 0 नहीं आएगा. Again 44 is divided by 4, 14 11s are 44. Again 54 is not divisible. Again 64 is divisible. 64 by 4 is 4 1s are 4, 2 4, 6 are 24, 0. So ये divisible. Again 74 is not divisible. Again 84 is divisible. It's like 21s are 4 21s are 84. Again 94 is not divisible. ये हो गया. Here 40 is divisible. 4 10s are 40. If 40 is divisible, then 41 is not divisible. Leaves remainder 1, leaves remainder 2, and leaves remainder 3. Again 44 is divisible. 11s are 44. So 45 is not divisible. 46 is not divisible. 47 is not divisible. Again 48 is divisible and 49 is not divisible. So not divisible and digit as 4 कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 is the answer. So simple thing. See, you need to note down all the numbers where 4 as a digit and then check divisible possible है कि नहीं है. Simple question है. ठीक है? You got it. So that's the last question and this concept is over. So the thing is you need to understand the concept and solve lots of questions. So I have done like explained you the concept like how units place में digits place में count करना है and particular thing. Then we solved few questions. So I hope you got clarity on how to address these kind of questions. So very important topic and very easy topic. One question is asked every year. That's it. See, just 1 hour of class you got clarity over one concept. So this is, we are done with 8 classes of number system. So almost all the important parts of number system are done. So if you have any queries regarding number system like कोई और concepts वगैरह discuss करना है, you can write it in the comment section. I will discuss. But as of today's class we are done. So I hope you understand the concept well. You are able to solve the questions UPSC is asking. That's it for today. Thank you very much. All the best.